So we have seen that for the purpose of Muhurat, we examine 5 things, and which is what is Panchang also called 5 elements: Tithi, Var, Nakshatra, Yog, and Karan. So last time we discussed about Tithis in detail. So any question, any doubt on Tithi, because Tithi is such a thing which is required in day-to-day life actually, and everyone will keeps on troubling you about Tithi. So in case you have any doubt, any question, you are most welcome. Otherwise, we go ahead actually. But everything should be clear about Tithi. Then we move to Nakshatra. We have 27 Nakshatra, we know, and these Nakshatras are divided into different categories based on the purpose for which we want to find out the Muhurat, or we want to find out the auspicious time. So first is known as a Dhruv Nakshatra. Dhruv means of a fixed nature or a stri nature or a stable nature actually. So these 4 nakshatras, Rohini, Uttar Phaguni, Uttar Ashada, and Uttar Bhadrapad, they are basically known as, they come under the category of stri nakshatra. So if you want to do any permanent type of work or stable type of work, so they are suitable for those things actually. Like you want to construct a house for where you want to live for a long time, joining job and promotion, you want to continue in that. So for such type of thing, these 4 nakshatras are supposed to be good nakshatra. Then some nakshatras are char. Char means chanchal or chal, that is a movable type of nakshatra. So if you want to do some movable type of job, so you can do in this 5 nakshatras. One is the Punarvasu, then Swati, then Shravan, then Dhanishta, and Satvishak. So these 5 nakshatras are basically come under the category of Chanchal or Chal nakshatra. Chal nakshatra means you want to travel, you want to use vehicle, or you want to purchase vehicle. So all those things, they belong to, you can do this type of thing in during these 5 nakshatras. Then it's a mixed means it's a mixed one actually. Mishra means mixed one, or we call it a saman or the normal thing. So these 2 nakshatras, Kritika and Vishakha, they are basically come in this category of Mishra, that is a mixed one. So Kritika and Vishakha nakshatra, you just do the normal thing, nothing very important, but ordinary type of things you can do during these nakshatras. Then we have a Laghu, or we call it a Vipra nakshatras. So these 4 nakshatras, Ashwini, Pushya, Hast, and Abhijit, because we are considering here Abhijit also, because that is the some portion of the 2 nakshatras. So we name it by a special name, that is Abhijit, because they say that Lord Ram was born during this period. So they just to, in the honor of Lord Ram, they call it a different nakshatra, that is Abhijit nakshatra. So these 4 nakshatras are known as a Vipra. Vipra means you want to start some business, you want to have a friendship with the opposite sex, wearing jewelry, preparing medicine, paint or sculpture. All this type of thing you can do during this Laghu nakshatra. Then Mradu. Mradu means Mitra. So these 4 nakshatras, Mrakshara, Chitra, Anuradha, and Revati. So these are known as a Mradu or the Mitra nakshatra. So naturally all friendship, singing, dancing, wearing new clothes, games, theater, all these type of things you can do during these nakshatras. Then Ugra. Ugra means cruel type of nakshatras. So if you want to do some cruel type of work or cruel type of work, then you can do during these 5 nakshatras: Bharani, Magha, Purv Phaguni, Purvashada, and Purv Bhadrapad. That is using arms to kill somebody, to give poison to somebody. That can be done during this cruel nakshatras. Then we have a Darun or the Tikshna nakshatras. So these are 4 basically. This is Adra, Aslesha, Jesta, and Mula. So things like black magic or Bhoot Pret, Vada Nivaran, all those type of things you can do during this Darun nakshatras. So all these 28 nakshatras, they have been divided into these 7 categories.
So depending on the type of work you want to do or the type of work for which you want to select a suitable time or the auspicious time, you can select the nakshatra accordingly. And we're talking of Abhijit Nakshatra. Abhijit Nakshatra is the last pad of Uttarashada plus first 4 ghati of last pad of Uttarashada and first 4 ghati of Shravan Nakshatra. So this portion, because they say Lord Ram was born during this period, so just in the honor of Lord Ram, they have given it a separate name, which is known as Abhijit. And the Lord of this nakshatra, they call it Jupiter actually. So, or you can say in the Capricorn sign, if you count this last part of Uttarashada plus 4 ghati of Shravan, so this will cover these degrees of Capricorn sign, 6 degree 40 minutes to 10 degree 53 minutes and 20 seconds. So this is a special nakshatra, supposed to be very auspicious, and Lord is also Jupiter. Now, सर बट फिर इसमें कैप्रिकॉर्न में तो जुपिटर डेबिलिटेड होता है. हाँ, डेबिलिटेटेड भले ही हो, यहाँ नक्षत्र की बात हो रही है. यहाँ जो नक्षत्र है, because Lord Ram was born actually, so that's why they consider it very auspicious. तो इसमें किस तरह के काम कर सकते हैं फिर? Any type of good work, any type of good अच्छा. work. Abhijit is such a wonderful nakshatra. You can do any type of thing actually. Then Dagd nakshatras, and they are supposed to be auspicious, and this is basically combination of day and the nakshatra. जैसे हम लोगों ने तिथि में देखा था, ऐसे यहाँ पर भी कुछ दिन और जो नक्षत्र है उनका जो अगर कॉम्बिनेशन होता है तो उसको हम दग्ध नक्षत्र कहते हैं, which is not auspicious. जैसे संडे के दिन भरणी नक्षत्र हो, मंडे के दिन चित्रा नक्षत्र हो, ट्यूसडे के दिन उत्तर आषाढ़ नक्षत्र हो, वेडनेसडे के दिन धनिष्ठा नक्षत्र हो, थर्सडे के दिन उत्तर फागुनी हो, फ्राइडे के दिन ज्येष्ठा हो या सैटरडे को रेवती हो, तो फिर हम लोग इस अगर डेट एंड नक्षत्र का कॉम्बिनेशन है तो उस दिन कोई भी ऑस्पिशियस काम हम नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर नॉट सपोज्ड टू बी ऑस्पिशियस कॉम्बिनेशन. सर इफ अ चाइल्ड इज बोर्न उस टाइम पे तो वो भी कोई या नो, दैट्स नॉट. वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड. What we are talking is to find out the auspicious time for doing some good work actually. Then Tithi Var Nakshatra. Now we come to the Yoga. Like 27 Nakshatra, we have 27 Yoga also. And Yoga is also of 13 degree 20 minutes. Like Nakshatra, the Yoga is also of 13 degree and 20 minutes. And how we find out the Yoga? Yoga is basically, we add the longitude of sun plus longitude of moon and divide by 13 degree and 20. Divide by 13 degree and 20 minutes. So whatever is the remainder, that is the yoga by this number. And the name of these 27 yogas are firstly, depending on the name, they are benefic or malefic. First, for example, is Vishkumbha. Iska jo Lord hai, that is Yama, and this is a benefic yoga. Then second yoga name is Priti. Lord is Vishnu, and this is also a benefic yoga. Then Ayushman, the Lord is Chandra or the moon, and it is also a benefic yoga. Then we have Saubhagya, Lord is Brahma, again a benefic yoga. Then fifth is Shobhana. Shobhana, Lord is Jupiter, again a benefic. Then we have Atigand, moon, and it is a malefic yoga because depending on the name, they are benefic or malefic. Then Sukarma, Lord is Indra, again benefic. Dhrati, Lord is water, again benefic. Shul, Lord is a snake, it's a malefic yoga. Then Gand, the Lord is fire, it's a malefic yoga. Then Harshana, Lord is Bhag, and again a benefic. Vajra is Varun, again a benefic. Siddhi is Ganesh, benefic. Vyatipat, Rudra is malefic. Varyan is Kuber, is benefic. Paridhi is Vishwakarma, malefic. Shiva is Mitra, is benefic. Siddha is Kartike, benefic.
Sadh is Savitri benefic, Shubha Lakshmi, Shukla is Parvati benefic, Brahma is Ashwini Kumar benefic, Indra is Pitar malefic, and Vedrati is Diti, and it is again a malefic yoga. So basically, the name itself indicates whether it's a benefic or malefic yoga. You can calculate this with the help of longitude of sun and moon, but in the Panchang, yoga is available for each day. So you can refer to that Panchang also, and you can find out which yoga is running at that time. So we can take that into account. If it is a benefic yoga, we can do any auspicious work. If it is a malefic yoga, we have to avoid it. Then Karan, Tithi, Var, Nakshatra, Yog, and Karan. What is Karan? Karan is basically half part of Tithi. Tithi, we have seen that each Paksh has 15 Tithis, or the lunar month has 30 Tithi. And this is the half part of the Tithi. It means how many Karans will be there in a month? Kitne honge? This is half part of the Tithi. 60. 60. Yes. Now, question is, the basis of Tithi we have already seen when there is a relative movement between sun and moon by 12 degrees. That is the duration of one Tithi. Then what should be how should we decide about the duration of Karan? Naturally, 6 degree. 6 degrees. So whenever there is a relative movement between sun and moon by 6 degrees, that is the completion of one Karan. So we don't decide, we just don't divide the time of a Tithi into two halves. But again, we apply the same formula that whenever there is a relative movement between sun and moon by 6 degrees, that is a completion of one Karan. So what we do, same thing as we find out the Tithi, from the longitude of moon, we subtract the longitude of sun and divide by 6. And then quotient plus 1 will give you the Karan. And one thing you have to remember, you have always have to subtract the longitude of sun from longitude of moon only. It's not a difference between the two. It is the longitude of moon minus longitude of sun only. But if you find that longitude of moon is lesser than the longitude of sun, then we add 360 degree in this, and then we subtract this longitude of sun. So in the Tithi also, exactly in the same way we decide the Tithi also, longitude of moon minus longitude of sun divided by 12, and quotient plus 1 gives you the Tithi. And how do you find out whether it is a Shukla Paksh or Krishna Paksh? कैसे मालूम करेंगे आप? If the difference in these two, longitude of moon and minus longitude of sun, is less than 180 degree, if the difference between, or you can say if the longitude of moon minus longitude of sun is less than 180 degree, this is Shukla Paksh. It is more than 180 degree, it is a Krishna Paksh. So we can find out whether the birth has taken place in a Krishna Paksh or Shukla Paksh, and depending on the longitude of moon and sun also, you can decide about the Tithi, in which Tithi the birth has taken place. Now Karans are of two types, because there has to be 60 Karan in a month. So some are recurring. Recurring means which they will repeat number of times actually, and some are non-recurring. They don't repeat in a month. So these recurring Karan, they get repeated in a number of times in a month, whereas non-recurring Karan ये repeat नहीं होते हैं. तो इसमें जो recurring है, basically there are 7 Karan, which name is Bab, Balav, Kaulav, Taitil, Gar, Vanis और Vishti. ये 7 Karan हैं जो कि बार बार repeat होते हैं महीने में, इसलिए हमको रिकरिंग करण कहते हैं. बब, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वनिज और विष्टि. और नॉन रिकरिंग है, ये सिर्फ 4 हैं जिनका नाम है शकुनी, चतुष्पाद, नाग और किस्तुग्न. शकुनी, चतुष्पाद, नाग और किस्तुग्न. अब महीने में 60 करण होने हैं, तो नेचुरली रिकरिंग हम कहते हैं कि रिपीट होते हैं बार बार, और ये रिपीट नहीं होते. तो इसका मतलब रिकरिंग कितने बार रिपीट होंगे एक महीने में?
56 होंगे सर ये 8 टोटल times. 8 times सिंपल, होंगे। 7 हैं तो 56 होना चाहिए, तो दे गेट रिपीटेड 8 times। तो 8 times तो ये रिपीट हो गए तो 56 हो गया, प्लस 4 ये है, ये कंटिन्यूअस जो है। तो इस तरह से एक महीने में ये जो 7 करण हैं ये 8 बार रिपीट होते हैं, और ये जो 4 करण है वो एक एक आता है बस। एंड दिस इज बेसिकली हाफ पार्ट ऑफ तिथि। नाउ इसमें से कौन से करण ऑस्पिशियस हैं, कौन से इनऑस्पिशियस हैं? तो कहते हैं कि ये जो चारों हैं नॉन रिकरिंग वाले, दे आर ऑल इनऑस्पिशियस। These 4 are all inauspicious, and out of these only the Vishti Karan is inauspicious. Vishti, और अगर आपने पंचांग खोल के देखा है तो आप देखेंगे कि एक भद्रा लिखा होता है वहां पर, भद्रा शुरुआत और Yes, भद्रा sir. समाप्ति, और भद्रा इज नॉट सपोज टू बी ए ऑस्पिशियस टाइम एक्चुअली। तो भद्रा इज नथिंग बट द विष्टिकरण, इसका जो दूसरा नाम विष्टिकरण का है दैट इज भद्रा। तो ये भद्रा महीने में कितने बार आएगा? 8 बार, 8 times. 8 टाइम्स। तो जब भी आप पंचांग खोल के देखते हैं, जैसे पंचक लिखा होता है या कुछ और लिखा होता है, ऐसे ही हर महीने 8 बार लिखा होगा कि भद्रा शुरू और भद्रा समाप्ति। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट टाइम, एंड दैट टाइम इज नॉट चोजन फॉर एनी ऑस्पिशियस वर्क एक्चुअली। तो आउट ऑफ दिस डिफरेंट करंट्स, 4 दिस नॉन रिकरिंग वाले ये खराब हैं, इनऑस्पिशियस हैं, एंड आउट ऑफ दिस रिकरिंग करण ओनली विष्टि इज इनऑस्पिशियस, और विष्टि को ही हमने भद्राकरण भी कहा। और भद्राकरण जो है आप पंचांग में देखते हैं कि महीने में 8 बार रिपीट होता है, और कितने घंटे का होगा? करीब तिथि का आधा भाग। तिथि को अगर मान लें हम 24 आवर्स तो करीब 12 घंटे का होगा। 96 hours. हाँ, तो 12 घंटे का समय महीने में 8 बार आता है, तो उसको हम ऑस्पिशियस नहीं मानते हैं। तो जब भी आपको भद्रा दिखाई दे तो भद्रा इज नथिंग बट ए करण, एंड करण इज दिस नॉन रिकरिंग टाइप विच गेट्स रिपीटेड 8 टाइम्स इन ए मंथ एक्चुअली। तो उसको हम अवॉइड करते हैं किसी भी ऑस्पिशियस काम के लिए। अब करण की जो शुरुआत होती है, ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की तिथियां हैं, और हर तिथि में आप देखेंगे कि 2 करण होते हैं। हर तिथि के अंदर 2 करण। तो इसमें भी ये शुक्ल पक्ष की तिथि है, ये कृष्ण पक्ष की तिथि है, थोड़ा सा मिक्सअप हो गया है। बट पहली तिथि को शुक्ल पक्ष की किस्तुग्न करण होगा। पहली तिथि जो शुक्ल पक्ष की होगी उसको किस्तुग्न करण होगा, किस्तुग्न करण से स्टार्ट होगा। उसके बाद ये रिकरिंग शुरू हो जाते हैं, बव बालव कौलव, बव बालव कौलव तैतिल गर वनिज बिष्टि जो है, और ये बार 7-8 बार जो है ये रिपीट होते हैं, पूरे 8 बार ये रिपीट होंगे यहाँ पर। और लास्ट में जाकर जब ये कृष्ण पक्ष का जो लास्ट का तिथि होती है, तो उसमें जो 14 तिथि होगी उसमें पहला करण 7 नंबर मतलब विष्टि होगा, उसके बाद शकुनी, चतुष्पाद और नाग। तो ये जो 4 करण है, किस्तुग्न से हमने शुरू किया शुक्ल पक्ष को, और उसके बाद बव बालव कौलव तैतिल गर्वनिज बिष्टि ये शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद लास्ट में जाकर जब हम कृष्ण पक्ष की बात करते हैं, अमावस्या के टाइम आते हैं, तो उससे जो चतुर्दशी तिथि होती है, पहला करण विष्टि होगा, सेकंड होगा शकुनी, फिर अमावस्या के दिन एक चतुष्पाद होगा और नाग होगा। तो इस तरह से ये करण जो है बार बार रिपीट होते हैं महीने में, बट वी हैव टू बी केयरफुल ओनली अबाउट दिस भद्रा एंड दिस 4 करण ओनली। और ये हाफ पार्ट ऑफ तिथि है, तो इनका ड्यूरेशन करीब 12 घंटे का होता है, लेकिन 8 बार तो भद्रा करण आएगा और 4 ये आएंगे। तो इन करण में हम लोग कोई भी ऑस्पिशियस काम नहीं करते हैं। सर ये फिक्स्ड रहता है हमेशा, वो जो कि उसमें स्टार्ट हुआ, ये फिक्स्ड रहता है जो आपने बताया? ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है बिल्कुल, इसमें कोई वो नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो कि शुक्ल पक्ष शुरू हुआ, शुक्ल पक्ष मान लीजिए शुरू हुआ, अमावस्या के बाद जो शुक्ल पक्ष होता है, तो उसमें पहला करण हमेशा किस्तुग्न होगा। जो पहली तिथि होगी पहला करण किस्तुग्न होगा, और उसके बाद बव शुरू हो जाएगा, फिर बव बालव कौलव तैतिल गर्वनिज बिष्टि, और ये रिपीट होते रहेंगे 8 बार जो है।
और लास्ट में जाके फिर ये जब अब ये दोबारा अमावस्या आएगी तो 14 तिथि को पहला करण विष्टि होगा, उसके बाद शकुनी, फिर चतुष्पाद और फिर नाग। तो ये फिक्स्ड है इनका जो सीक्वेंस है, बट ओनली थिंग इज कि वी हैव टू सी द टाइमिंग ऑफ तिथि एंड टाइमिंग ऑफ ईच करण। द टाइम चेंज होता रहेगा क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ सन, मून एंड द अर्थ, एक्चुअली जो ड्यूरेशन है करण का वो चेंज हो जाएगा। Okay, just one clarifying question. On the earlier page, जी जो पहले इसमें जो आप बता रहे थे स्लाइड 10 पे, अगर फर्स्ट तिथि पे on the first तिथि the first karan is going to be Krishpag. यहाँ देखिए ये पूर्णिमा से पूर्णिमा की बात नहीं कर रहे, पहला शुक्ल पक्ष की बात कर रहे हैं। करेक्ट। शुक्ल पक्ष मतलब अमावस्या के बाद जो पहली तिथि होगी, अमावस्या में जो पहली तिथि होगी अमावस्या के बाद, उसमें पहला करण किस्तुग्न होगा और दूसरा करण होगा बब का। I see, okay. या तो बब, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वनिज, बिष्टि, और ये बार बार आप देखेंगे 1 to 7 रिपीट होते रहेंगे 8 टाइम्स एक्चुअली। और लास्ट में जब ये दोबारा अमावस्या आएगी तो पहला करण बिष्टि का, दूसरा शकुनी का, फिर ये अमावस्या के दिन चतुष्पाद और नाग, क्योंकि एक तिथि में 2 करण होंगे। ठीक है। Now, what are the lord of these Karans and which Karan is suitable for what purpose? That we have to see. So, first is the Shakuni. Shakuni we have said is a malefic Karan actually. So, iska lord is Kal. So, this is used only for things like this, preparation of medicine or doing some puja part or some chanting of mantras only. Nag is again a malefic Karan. So, its lord is Sarv, and for the cruel work or to go to the war or even for education we can do it actually. Then Kistugna again is a malefic, lord is Vayu, Maruti, so inauspicious for all type of work, so we don't do any type of work during this Karan actually. Chatushpad again a malefic Karan and lord is a brush, so we do only the Pitrakar और जो हम लोग ये श्राद्ध वगैरह करते हैं उस टाइप के काम ही हम लोग करते हैं इस करण में। and earlier they used to exchange cows also during this Karan actually. Now all these are good up to one is. So above the lord is Indra, so this is good for fasting, celebrations, competition and business. Balav is lord is Brahma, so during this period we do the 6 rituals of Brahmins and it's good for education also. Kaulav, the lord is Pitra and is for the friendship and the celebration. Tatil, lord is sun, so for marriage and all auspicious work. Gar is Bhumi, everything connected with agriculture we can do during this Karan. One is Lakshmi, so naturally so for the good for the business, putting idol in the temple or some Grah Pravesh or entry in the house. Then Vishti is inauspicious. This is Bhadra or Vishti, the same thing. So this is an inauspicious Karan. इसका lord Yam है, so this is naturally inauspicious, Ashubh है, so good only for cruel and inauspicious type of work. तो ये जो है different Karan में हम किस टाइप के काम कर सकते हैं, that is indicated here. सर ये पितृ का मतलब है, कौलव में जो पितृ है जी, तो इस लॉर्ड इज पितृ एक्चुअली। ये ऑस्पिशियस है इनऑस्पिशियस? हाँ, दिस ऑल ऑस्पिशियस। बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वनिश, यहाँ तक ये जो 6 करण है ये ऑस्पिशियस हैं। सिर्फ ये 4 जो नॉन रिकरिंग वाले हैं, शकुनी, नाग, किस्तुग्न, चतुष्पाद और एक ये विष्टि करण है, ये सिर्फ 5 करण अशुभ माने गए हैं और बाकी सारे करण जो है वो शुभ माने गए। So ये नाग वाला is inauspicious, or we have written here education. Right. So education को कभी-कभी हम लोग एजुकेशन का जो पुराने टाइम में मतलब होता था कि मंत्र सीखने के लिए जो है, पूजा पाठ करने के लिए, that was the basic purpose. But आजकल की एजुकेशन को हम काउंट नहीं करेंगे, but maybe from the earlier point of view जो हम लोग जो मंत्र वगैरह सीखते थे उसके लिए ठीक है। तो मंत्र वगैरह भी जो हम
कौन से मतलब हम सीखते हैं तो वो भी अच्छे टाइम में ही सीखने नहीं चाहिए? देखिए, जब भी मंत्र वगैरह का हम जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो कहते हैं जितना भी अशुभ समय होगा उसमें करेंगे तो उसका सबसे ज्यादा फल होता है। इसीलिए जब भी आप रेमेडीज की हमने देखा था, तो उसमें ऐसे टाइम में जैसे ये सूर्य ग्रहण हो रहा हो, सोलर लूनर एक्लिप्स है, उस टाइम करेंगे, संक्रांति के टाइम करेंगे, या कृष्ण पक्ष में करेंगे, ये जो मेलिफिक डेज होते हैं उसमें करेंगे, तो उस टाइम उनका असर ज्यादा होता है, क्योंकि उस टाइम जो अशुभ समय में करेंगे तो उसका फल आपको ज्यादा मिलेगा। सर एक रीजन और था कि आश्रम जाते थे और गुरु दर्शन होते थे, तो ये शुभ माना जाता था, आश्रम जाना और गुरु दर्शन करना, तो पूजा के इक्विवेलेंट ही मानते थे इसे। बिल्कुल बिल्कुल, नेचुरली गुरु का दर्शन तो फिर शुभ ही इक्विवेलेंट टू होगा। पूजा ही माना जाता था इसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब करण के बारे में जो भद्राकरण की हमने बात की थी, तो वो 8 बार रिपीट होगा 1 महीने के अंदर जो है। तो नेचुरली लॉट ऑफ व्यूज अबाउट दैट कि 8 बार रिपीट होता है, 8 बार तो अशुभ नहीं हो सकता हर समय जो है। तो उसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस हैं लोगों के, डिफरेंट डिफरेंट लिखा गया उसके बारे में एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट में। तो पहले तो एक भद्रा निवास कहाँ करता है, तो कहते हैं कि जब मून कैंसर, लियो, एक्वेरियस एंड पाइसेस साइन में होता है। जब मून अगर कैंसर, लियो, एक्वेरियस एंड पाइसेस साइन में है, और उस टाइम अगर भद्रा पड़ता है, उस टाइम अगर भद्राकरण आता है, तो कहते हैं कि भद्रा रिजाइड्स इन द मृत्युलोक। मृत्युलोक मीन्स ऑन अर्थ एक्चुअली, उस टाइम अर्थ पर उसका निवास स्थान है। और जब मून अगर 1, 2, 3 एंड 8 साइन में होता है, तो कहते हैं कि भद्रा का निवास स्थान स्वर्गलोक है। और अगर मून 6, 7, 9 एंड 10 साइन में होता है, तो भद्रा कहते हैं कि पाताल लोक में निवास करता है। तो नेचुरली उनका कहने का मतलब है कि जब भद्रा हमारा मृत्यु लोक पर निवास करता है, तो वी आर कंसर्न ओनली विद दैट, नॉट विद दिस एक्चुअली, नॉट विद दिस। तो कुछ लोगों का ओपिनियन ये है कि जब भद्रा हमारा मृत्यु लोक पर निवास करता है, उसी टाइम हमको उसको इनऑस्पिशियस समझना चाहिए, अदरवाइज हमें इनऑस्पिशियस नहीं समझना चाहिए। तो अगर ये मून आपके 1, 2, 3, 8, 6, 7, 9 एंड 10 साइन में है, और उस टाइम अगर भद्रा आता है, तो कहते हैं उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उसका कोई आप कॉग्निजेंस ना लें, दैट इज नॉट ऑस्पिशियस, क्योंकि वो हमारी मृत्यु लोक पर निवास नहीं करता, दैट रिवाइड्स ऑन द स्वर्गलोक और पाताल लोक। तो मेनली इसका मतलब यही हो गया कि मून अगर इन राशियों में है और उस टाइम अगर भद्रा आता है, तो वो आपके लिए अशुभ हो जाता है, और बाकी राशियों में जब मून होता है और उस टाइम अगर भद्रा आता है, तो उससे हमें बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं होना चाहिए। फिर इसके अलावा भद्रा का माउथ एंड टेल होता है, भद्रा का माउथ एंड टेल होता है। तो कहते हैं कि माउथ तो इनऑस्पिशियस होता है और टेल जो होती है वो ऑस्पिशियस होती है। तो भद्रा भी आएगा, जैसे 12 घंटे का आएगा, तो उसमें भी उसका कुछ पार्ट कहते हैं ऑस्पिशियस है और कुछ पार्ट उसका इनऑस्पिशियस है। तो अगर हम तिथि की बात करें, तो भद्रा की जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की तिथियों की बात करें, तो हम हमेशा देखेंगे कि भद्रा जो है इन तिथियों में पड़ेगा, शुक्ल पक्ष की 4th, 8th, 11th एंड 15th तिथि को। ऐसे ही भद्रा कृष्ण पक्ष की इन तिथियों में पड़ेगा 3rd, 7th, 10th एंड 14th तिथि को। दिस इज फिक्स्ड एक्चुअली, इसमें कोई चेंज नहीं है। और जो भद्रा होगा, क्योंकि एक तिथि के 2 पार्ट होते हैं, तो ये 4th तिथि में सेकंड पार्ट तिथि का जो होगा वो भद्रा होगा। इसी 8th तिथि में फर्स्ट पार्ट होगा जो तिथि का, वो भद्रा होगा। ऐसे ही 11th तिथि में जो सेकंड पार्ट होगा वो भद्रा होगा, और 15th तिथि में फर्स्ट पार्ट होगा वो भद्रा होगा। ऐसे ही इन तिथियों में है। तो ये हमें पता लग गया कि इस तिथि में उस तिथि का कौन सा पार्ट भद्रा है। दिस इज मेंशन्ड हियर। तो नाउ व्हाट दिस से कि यू हैव टू कंसीडर, if it is 4th तिथि, you have to consider the 5th प्रहर. If it is 8th तिथि, you have to consider 2nd प्रहर. If it is 11th, you have to consider 7th प्रहर. If it is 15th, you have to consider 4th प्रहर. ऐसे ही इन तिथियों में ये प्रहर हमें कंसिडर करना है। अब क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रहर? प्रहर क्या होता है? सुना है कभी आपने?
एक दिन में कितने प्रहर होते हैं? 4 और 8 8 एक दिन में 8 प्रहर होते हैं। तो हमें जो है इस स्थिति में 5वां, इसमें दूसरा, इसमें 7वां, इसमें चौथा, ऐसे इसमें 8वां प्रहर, ये प्रहर 3 घंटे का हुआ, इसमें तीसरा, इसमें छठा, इसमें पहला। तो ये जो इस प्रहर में जो पहली 5 घटी हैं, इन प्रहरों में जो पहली 5 घटी हैं उनको हम कहते हैं माउथ घटी। माउथ घटी कि जो भद्रा का माउथ है, वो घटी का मतलब क्या हुआ? 5 घटी मीन्स व्हाट? 24 minutes into 5. तो सर एक घटी में 24 मिनट हुए ना सर? बस एक घटी में 24 मिनट होते हैं। एक घंटे में 2.5 घटी होती है, तो ये 2 घंटे का समय हो गया। हाँ जी। एक घंटे में 2.5 घटी होती है, तो ये 2 घंटे का समय हुआ जो भद्रा में, उसको हम कहते हैं माउथ घटी। और अगर हम इन तिथियों में ये वाले प्रहर कंसिडर करेंगे 8, 1, 6, 3, 7, 2, 5, 4, और उसमें अगर हम पहली 3 घटी कंसिडर करते हैं, पहली 3 घटी, तो उसको हम कहते हैं टेल ऑफ भद्रा, दैट इज टेल ऑफ भद्रा। तो हम हर भद्रा में हम वी कैन फाइंड आउट कि कौन सा माउथ है और कौन सा टेल है उसका, कौन सा माउथ है और कौन सा टेल है। तो कहा कि माउथ इनऑस्पिशियस होता है और टेल इज ऑस्पिशियस। तो वी कैन डिसाइड ऑन दैट बेसिस आल्सो कि भद्रा में भी जो है 8 बार इतनी चिंता की बात नहीं है। ओनली व्हेन भद्रा resides in the मृत्युलोक and when it is a tail of भद्रा, that is also auspicious. तो ये पंचांग में कैसे दिया होगा ऑस्पिशियस और ये करके लिखा भद्रा होगा? में ये माउथ टेल उसका नहीं लिखा होगा, that you have to do yourself, बट वहां पर सिर्फ भद्रा लिखा होता है, लेकिन इतना डिटेल में नहीं जाते वो माउथ और टेल। बट जब मुहूर्त निकालते हैं वो, क्योंकि आपने देखा होगा कि हर पंचांग में शुरू में मुहूर्त निकले होते हैं, तो while calculating the मुहूर्ता for everything they take all these things into account, but उसमें क्यों मुहूर्त जैसे ये वाले सर्वा सिद्धि योग, विजय मुहूर्त, जैसे गोधूली शादी का मुहूर्त, मुहूर्त, गृह प्रवेश का मुहूर्त, सर्वार सिद्धि योग, हर चीज का मुहूर्त आप अगर पंचांग के कुछ पहले पेजेस को देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएंगे सारे के सारे जो है। तो ये गोधूली मुहूर्त भी लिखा होता है, ये किस चीज के लिए होता है? अभी आते हैं उस पर आएंगे। अच्छा। तो उसमें सारे जो मुहूर्त हैं वो निकले हुए होते हैं, ऐसा नहीं कि आपको निकालना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है, बट फिर भी मान लीजिए कोई ऐसी इमरजेंसी आती है या जो उसमें लिखे हुए हैं वो आपके लिए सूटेबल नहीं है, या जिस टाइम आपको करना है उस टाइम कोई ऐसा मुहूर्त नहीं लिखा हुआ होता है, देन यू हैव टू कैलकुलेट ऑल दोस थिंग्स। अब कुछ और चीजों को भी हम कंसिडर करते हैं मुहूर्त के लिए, खाली ये जो तिथि वार नक्षत्र योग करण ही नहीं है, बट देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स व्हिच वी हैव टू कंसीडर फॉर फाइंडिंग आउट द ऑस्पिशियस टाइम और मुहूर्त। एक्चुअली इसमें हम तारा बल भी देखते हैं। तारा, तो जैसा हम लोगों ने पढ़ा भी था पहले कि 9 तरह की ताराएं होती हैं, जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्ययरी, साधक, वध, मित्र और अति मित्र। जन्म का मतलब बर्थ, संपत प्रॉस्पेरिटी, विपत means problems in the life, danger, shame is a favor, pratyari is again enmity, inimical, sadhak is helpful, but again name indicate obstructions, mitra is friend and ati mitra is intimate friend. So how we find out the tara for the muhurat? तो उसमें कहते हैं कि count from your birth नक्षत्र, जो भी आपका बर्थ नक्षत्र है उससे जो प्रेजेंट नक्षत्र जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं मुहूर्त के लिए उसको काउंट करिए। जो भी आपका बर्थ नक्षत्र है उससे जो भी मुहूर्त के लिए आप नक्षत्र सेलेक्ट कर रहे हैं वहां तक काउंट करिए और उसको 9 से डिवाइड कर दीजिए, उसको 9 से डिवाइड कर दीजिए, और जो भी रिमाइंडर आएगा दैट विल इंडिकेट द तारा फ्रॉम दिस सीरियल नंबर, जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्ययरी, साधक, वध, मित्र एंड अति मित्र। एक आता है तो जन्म हो गया, 2 आया तो संपत हो गया, और 0 आया तो मतलब 9 हो गया, दैट इज अति मित्र, लास्ट तारा एक्चुअली। तो इसमें जो है हम तारा बल देखने के लिए अपने बर्थ नक्षत्र से काउंट करते हैं, और जो भी हम टाइम, जिस टाइम हम चूज कर रहे हैं मुहूर्त के लिए उसका नक्षत्र हम देखते हैं और वहां से काउंट करके उसको हमें सिंपल 9 से डिवाइड करना है, और जो भी रिमाइंडर आएगा वो आपकी तारा को इंडिकेट करता है 1 to
8 and 0। और इसमें जो फेवरेबल तारा होती है 2, 4, 6, 8 and 9, 1, 3, 5, 7 को हम छोड़ देते हैं। उसके बाद जो भी 2, 4, 6, 8, 9 ताराएं होती हैं वो फेवरेबल है। इसका मतलब तारा बल है उस टाइम जो है। और इसके बारे में कहा गया क्योंकि कई बार आप बात करते हैं कि चंद्र बल को देखते हैं, मून शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड समटाइम पीपल से द तारा शुड बी स्ट्रॉन्ग। तो व्हेन टू कंसिडर मून एंड व्हेन टू कंसिडर तारा, तो उसके बारे में कहा कि अगर शुक्ल पक्ष का समय है, जिस टाइम हम मुहूर्त निकाल रहे हैं, अगर वो शुक्ल पक्ष का समय है, देन वी हैव टू कंसिडर द चंद्र बल और द स्ट्रेंथ ऑफ द मून एक्चुअली। और अगर कृष्ण पक्ष का समय है, देन वी हैव टू कंसिडर द स्ट्रेंथ ऑफ तारा और वी कॉल इट तारा बल एक्चुअली। तो ये जो टाइम हम देख रहे हैं, अगर वो शुक्ल पक्ष का समय है तो हमें चंद्र बल को कंसिडर करना है, और अगर कृष्ण पक्ष का समय है तो हमें तारा बल को कंसिडर करना है। और चंद्र बल क्या होता है, जैसे तारा बल आपने देखा इस तरह से हम निकालेंगे। और चंद्र बल क्या है कि जो आपका बर्थ साइन है, जो आपका बर्थ साइन है, मून शुड नॉट ऑक्यूपाई 6, 8, 12 पोजीशन फ्रॉम योर बर्थ साइन। तो ये चंद्र बल होता है कि जो जहां भी जब आप सेलेक्ट कर रहे हैं टाइम, उस टाइम चंद्रमा जो है आपके जो बर्थ राशि है या जो आपकी मून राशि है उससे 6, 8, 12 पोजीशन में नहीं होना चाहिए। तो ये बर्थ साइन मतलब चंद्रमा का पोजीशन है। चंद्रमा आपकी जिस राशि में भी है उस राशि से प्रेजेंट चंद्रमा 6, 8, 12 पोजीशन में नहीं होना चाहिए, राइट। देन वी आल्सो कंसिडर तारा डूबना, जो हम लोग बात कर रहे थे अभी भी पिछले बार भी जो है कि जैसा आप देख रहे थे कि करीब 15 दिसंबर के बाद टिल द एंड ऑफ अप्रैल देयर वाज नो मुहूर्त फॉर द मैरिज, और हम लोग कह रहे थे कि तारा डूबा हुआ है। हम कहते तारा डूबा हुआ है। तारा डूबने का मतलब ये होता है कि जब आइदर ऑफ दीज टू प्लैनेट, जुपिटर और वीनस, is very near to the sun, is combust actually, तो then we say कि तारा डूबा हुआ है। और जब तारा डूबा हुआ होता है तो भले ही बाकी सब चीजें ठीक क्यों ना हो, हम कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं, क्योंकि तो इसमें वही 5 डिग्री और लेस देन 5 डिग्री कंसीडर करेंगे फॉर कंबस्ट। या ओके। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है बिकॉज दिस विल सुपरसीड एवरीथिंग एल्स। कि अगर हमें इन दो प्लैनेट की ब्लेसिंग नहीं मिलेगी तो नेचुरली द टाइम कैन नॉट बी ऑस्पिशियस, अच्छा मुहूर्त तो हो ही नहीं सकता। तो बाकी पोजीशन कैसी भी हो प्लैनेट की, या जो हमने तिथिवार नक्षत्र योग करण डिस्कस किए वो कितने भी अच्छे क्यों ना हो, बट अगर तारा डूबा हुआ है या जुपिटर या वीनस में से कोई भी प्लैनेट, एक प्लैनेट कंबस्ट है या सन के बहुत पास है, तो हम कोई भी शुभ काम उस पीरियड में नहीं करते हैं। और जुपिटर जैसे आप जानते हो, बिकॉज द प्लैनेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी इज अ गॉड एक्चुअली, सो वी नीड टू हैव अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड फॉर डूइंग एनी ऑस्पिशियस वर्क। तो इसलिए जुपिटर का तो एक तरह से ईश्वर की हम लोग, जब वो ठीक पोजीशन में नहीं है तो हम लोग नहीं करेंगे कोई भी काम। और वीनस से हमें सारे जो सुख सुविधाएं मिलती हैं लाइफ में, हम शादी करते हैं तो हम सोचते हैं खुशी रहें, सब कुछ हमें सब प्रॉस्पेरिटी मिले लाइफ में, तो वो वीनस से मिलेगी आपको। तो इसलिए वीनस भी वेल प्लेस्ड होना चाहिए कोई भी शुभ काम करने के लिए। तो इसलिए जब भी इनमें से कोई भी प्लैनेट अगर कंबस्ट होगा या वेल प्लेस्ड नहीं होगा, तभी भी हम कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि दैट इज नॉट ए ऑस्पिशियस टाइम। And now what about Lagna? Because we have been saying everywhere कि Lagna has to be strong. अगर लग्नी strong नहीं है तो मुहूर्त अच्छा हो ही नहीं सकता। तो Lagna has to be strong for doing any auspicious work. जैसे हमने कहा कि चंद्र बल देखा हमने, तारा बल देखा, तो ऐसे ही लग्न की स्ट्रेंथ भी आपको देखनी पड़ेगी। And for doing anything, Lagna has to be strong actually. तो स्ट्रॉन्ग मतलब लगना शुड बी पावरफुल एज वी सी इन द नॉर्मल केस। जो भी प्लैनेट की पोजीशन है या जो भी लॉर्ड है कहाँ पर है, तो दैट इज अ नॉर्मल केस वी सी द पोजीशन ऑफ लगना। देन लगना शुड हैव साइन अदर देन 8th और 12th फ्रॉम द मून साइन ऑफ द बर्थ। अगर जो भी आपका मून साइन है बर्थ का, उससे जो है लगना 8th और 12th साइन नहीं होना चाहिए।
जैसे मान लीजिए कि मून आपका टॉरस साइन में है बर्थ के टाइम, तो लग्न कैन नेवर बी 9 और 1, क्योंकि उससे जो है 8th साइन 9th साइन हो गया और 12th साइन जो है 1 साइन हो गया। तो लग्न जो है वो 1 या 9 साइन नहीं होना चाहिए। तो लग्न शुड बी हैव साइन अदर देन 8th or 12th sign from the moon sign of the birth actually. Then again another thing, from lagna there should be no planet in 8th or 12th position. 8th or 12th house from lagna should not have any planet, क्योंकि कोई भी planet होगा, naturally all planets are important for us, तो कोई भी planet होगा तो weak हो जाएगा वहां पर। तो लग्न से 8th और 12th position में कोई भी planet नहीं होना चाहिए at the time of मुहूर्त। Then सर लगन जो करंट चल रहा है उससे हाँ, हम जो भी अपने आपने मान बर्थ लीजिए, चार्ट में चेक करेंगे। हाँ, जैसे मान लीजिए कि अभी इस टाइम हम लोग लेट अस से कि मुहूर्त देखना चाहते हैं कि दिस टाइम इज ऑस्पिशियस और नॉट, तो इस टाइम हमने लग्न देखा, कौन सा लग्न है? अभी है पंचांग से आप देखिए, तुला, चलिए मान लीजिए तुला ही लग्न है, ठीक लिब्रा। है, तुला मान लीजिए लग्न है, तो 8th और 12th हाउस फ्रॉम द लग्न, तो तुला से 8th हाउस क्या हो गया? सेकंड हाउस, सेकंड साइन हो गया। यस, तो सेकंड साइन में कोई प्लैनेट नहीं होना चाहिए, और उससे 12th साइन कौन सा हुआ? 6th साइन, वर्गो साइन, हाँ, तो वर्गो में कोई प्लैनेट नहीं होना चाहिए। वो हमारे चार्ट में, मतलब हम अपने बर्थ चार्ट में देखेंगे कि वर्गो में, बर्थ और चार्ट में नहीं देखना, ये जिस टाइम आप मुहूर्त सेलेक्ट कर रहे हैं उस टाइम का देखना है। अच्छा उस टाइम का हमें चार्ट बनाना है, उस टाइम पे का ट्रांजिट चार्ट बनाना है, और उस टाइम के चार्ट में उस हाँ। लग्न से 8th और 12th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं होना चाहिए। This is what और is से सेकंड पॉइंट में भी इस तरह से ही है, हमें करंट हाँ। लगन चार्ट बनाना है, उसमें 8 और हाँ, 12 से बिल्कुल मून नहीं होना करंट चाहिए। लगन चार्ट बनाना है, और वो लगन जो है वो मून साइन जो आपका बर्थ साइन है उससे हाँ। 8th और 12th पोजीशन नहीं होनी चाहिए। जैसे सर अभी तुला लगन चल रहा है, तो मतलब अगर कोई अभी इस समय का लगन ले तो इस समय 8th हाउस में सूर्य हो गया, राहु हो गया, वो ठीक नहीं है, जी, है ना? जैसे अगर मान लीजिए कि तुला लग्न है इस समय, तो तुला लग्न से हाँ, जो 8th पोजीशन हुआ वो कौन सा हुआ? वृष राशि, टॉरस साइन, और 12th पोजीशन कौन सा हुआ? 6th साइन, वर्गो साइन। हाँ जी, तो टॉरस और वर्गो साइन में कोई प्लैनेट नहीं होना चाहिए, टॉरस और वर्गो साइन में कोई प्लैनेट नहीं होना चाहिए मुहूर्त के समय। ये आपको बर्थ चार्ट नहीं देखना, ये प्रेजेंट पोजीशन ऑफ प्लैनेट है वो देखना आपको। नहीं, जब मुहूर्त का टाइम 1 घंटे या 2 घंटे होता है तो एग्जैक्ट टाइम क्या लेंगे हम लोग मुहूर्त का? नेचुरली कोई पर्टिकुलर लग्न होगा तो वो 2 घंटे का इस टाइम होगा, वो मैक्सिमम जो है। हाँ, तो हम अगर कोई दो लग्न भी ठीक है तो अलग बात है, बट नॉर्मली इट इज फॉर 2 hours ओनली, बिकॉज व्हेन पर्टिकुलर लग्न इज प्रिवेलिंग। कैलकुलेशन के लिए क्या टाइम लेंगे हम लोग उसमें? मतलब मान लीजिए लग्न हमारा 10 से 11 बजे तक, हमारा मुहूर्त 10 से 11 बजे तक आ रहा है मॉर्निंग में, हाँ, अब हम टाइम क्या लेंगे? लग्न 10:30 बजे लेंगे, 10 बजे लेंगे, 11 बजे लेंगे? नहीं, 10 से 11 के बीच में आप किसी टाइम भी कर सकते हो। जो मुहूर्त का टाइम है 2 घंटे का, उस 2 घंटे के दौरान आप किसी भी टाइम में कर सकते हो। फिर उसमें हम वो हो रहा और नहीं देखेंगे, उस समय चार्ट देखिए हो रहा तो हमने सब देख के तो हम लग्न का टाइम निकाला ना हमने, हम वी आर कंसिडरिंग हंड्रेड्स ऑफ फैक्टर्स, तो उसमें सब हो रहा सब आ गया। जो ये पंचांग में निकाले हुए टाइम है उसमें दे टेक इनटू अकाउंट एवरीथिंग एक्चुअली। लीजिए पंचांग में आ गए 2 घंटे मुहूर्त अच्छा है ये वाला, ठीक है, 2 घंटे में के दौरान आप किसी भी टाइम में कर लीजिए। और फिर अब लगना कैसे देखेंगे? ये वाला चार्ट कैसे बनाएंगे हम लोग ये देखने के लिए 8th and 12th हाउस एंड ऑल दोस थिंग्स? ये तो उसमें अकाउंट फॉर हो गया ना, बट मान लीजिए कि अभी जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि मुझे कुछ काम करना है अभी, ठीक है, और मैं जानना चाहता हूँ कि ये समय शुभ है या नहीं है मेरे लिए, तो इस समय जैसा आपने कहा कि लग्न जो है वो 7th साइन है मान लीजिए, और मैंने देखा कि जो उससे 8th और 12th पोजीशन है, मतलब सेकंड साइन में और 6th साइन में कोई प्लैनेट का प्लेसमेंट है, तो हम कहेंगे कि वो मुहूर्त शुभ नहीं है मेरे लिए। क्लियर अनिल जी? हमारा कहना था कि मान लीजिए टाइम लगन का मतलब टाइम जो है मुहूर्त का 2 घंटे दिया हुआ है, बिल्कुल
एग्जैक्ट कौन सा टाइम लेंगे इस समय 2 घंटे में से? 8 से 10 का मान लीजिए मॉर्निंग में टाइम है, शादी का जी। टाइम है 8 से 10, ठीक है, तो कौन सा कोई भी ले लेंगे उसमें से? 8 बजे ले हाँ। लेंगे, 9 बजे। वही मैं कह रहा हूँ कि उसके दौरान आप खत्म कर दीजिए काम को, या अगर कोई बहुत लंबा काम है 2 घंटे में नहीं हो सकता तो उसमें वो शुरू हो जाना चाहिए, एंड मोस्ट ऑफ द वर्क शुड बी डन ड्यूरिंग दैट टाइम। वो तो ठीक है, पर ये जो हम चार्ट कैसे बनाएंगे? लगन का टाइम एग्जैक्टली क्या लेके हम उस समय का चार्ट बनाएंगे? आपने जो 2 घंटे का टाइम सेलेक्ट किया ना, उसमें से हाँ 2 घंटे है, 2 घंटे एक लग्न 2 घंटे के लिए होता है करीब करीब। तो उसमें हो सकता है आधा लगन ऊपर निकल जाए, आधा लगन नीचे निकल जाए। नहीं, तो उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि उस दौरान अगर आधा लग्न ऊपर जा रहा है नीचे भी जा रहा है तो दोनों लग्नों से 6-8 पोजीशन में कोई प्लैनेट, 8th और 12th पोजीशन में कोई प्लैनेट नहीं होना चाहिए। हो अच्छा, सकता है जैसे सर, हेलो हाँ सर, जी। जैसे मान लो कि तुला लगन है, जी, अगर मान लो हम कन्या लगन में को चुनाव करते हैं तो वहां पर जो मतलब 8th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं दिखाई देगा इस समय, 8th साइन में उससे, हाँ बिल्कुल हाँ ठीक है, जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। है ना, क्योंकि जो जैसे सूर्य इस समय 8th हाउस में कन्या लगन के हिसाब से तो 9th हाउस में हो जाएगा। बिल्कुल, तो इसलिए तो उसका, हाँ जी, जो भी उसका, आप लग्न सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपने देखा कि आज इस समय ये लग्न है, तो वो लग्न के लिए ये जो पोजीशन ऐसी नहीं है कि 8th और 12th हाउस में कोई प्लैनेट है वहां पर, तो नेचुरली 2 घंटे का समय आपको मिल गया, तो 2 घंटे का आपका ऑस्पिशियस टाइम हुआ, शुभ मुहूर्त हुआ, तो 2 घंटे के दौरान आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं वो। दैट इज तो द जैसे मीनिंग। मैरिज कर है, मैरिज का मुहूर्त पंचांग में आया मान लो, तो बट हम उसमें वो तो जनरल है, अब उसमें हमारे मून साइन से ये 8th-12th पोजीशन ये तो उसमें नहीं नहीं, होगा ना, तो वो क्यों हमें देखना पड़ेगा। क्यों, हाँ वो तो ये बिल्कुल, तो हमारा बर्थ साइन से है ना, करेक्ट मून करेक्ट साइन, तो करेक्ट। वो तो जनरल हो गया और हमें अपना आपने स्पेसिफिक देखना अभी होगा, तो आपने कभी उसमें विवाह, लड़के का आपने कभी विवाह का मुहूर्त देखा पंचांग में? सर नहीं दैट इज द प्रॉब्लम, आपने पंचांग कभी पढ़ा नहीं। सर, वो ऐप है उसमें ऐसे लिखा नहीं होता, दृक ऐप नहीं है, पंचांग वाली ऐप। पंचांग इज ए बेसिक टूल which I think you should make a habit to turn the pages. That is more important. जब भी विवाह का मुहूर्त होता है, that is according to the moon sign only. जन्म राशि लिखी रहती है सर, जन्म राशि लिखी होती है पहले कि इस जन्म राशि के लिए ये मुहूर्त ठीक है। जन्म राशि, वो भी वर्ड यूज करते हैं, जन्म राशि, बिल्कुल। नाम सर, राशि। बट इसमें लड़के की देखेंगे या लड़की की देखेंगे? दोनों का जन्म अलग राशि अलग होता है कि टेबल बनी लड़के के होती लिए है। अगर लड़की की जन्म राशि ये है तो ये मुहूर्त है, लड़के की जन्म राशि है तो ये मुहूर्त है, फिर हम देखते हैं कि दोनों के लिए कॉमन कौन सा मुहूर्त है। तो दिस इज हाउ वी सी द मुहूर्त ऑफ मैरिज एक्चुअली। उसमें मून साइन विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज मैरिज कोई छोटा मोटा काम नहीं है। तो मैरिज का जो भी मुहूर्त होता है वो हमेशा मून साइन के हिसाब से होता है, लड़की के लिए अलग होता है, लड़के के लिए अलग होता है, और फिर हम उसमें देखते हैं कि कॉमन कौन सा है, दोनों की राशियों में कॉमन डेट कौन सी है, उसमें हम सेलेक्ट करते हैं मैरिज का डेट एक्चुअली। तो लेकिन जो मैरिज के डेज होते हैं वो तो जनरली ऐसे होते हैं कि उस दिन पे बहुत सारी शादियां होती हैं तो वो सभी का और उस टाइम पे वो मैच करता शुभ है। मुहूर्त मैडम, वो शुभ मुहूर्त है ना, उसमें काफी चीजें कवर हो गई। शुभ मुहूर्त का मतलब यही है ना कि अभी आप देखेंगे, अभी हम करेंगे उसमें, देन यू विल सी हाउ मेनी थिंग्स आर कंसिडर्ड फॉर मैरिज मुहूर्त अपार्ट फ्रॉम ऑल दोस थिंग्स। मैरिज मुहूर्त इज नॉट इजी थिंग एक्चुअली। अभी करेंगे हम उसको, स्टडी करेंगे, तो उसमें और बहुत सारी चीजें भी देखते हैं, क्योंकि मैरिज इज कंसिडर्ड सच एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एक्चुअली। तो उसके लिए बहुत सारी चीजें और भी देखी जाती है इनके अलावा, बट मैरिज मुहूर्त इज ऑलवेज बेस्ड ऑन योर जन्म राशि। और जितने भी आप जब जैसे और मुहूर्त में तो आपको सिर्फ डेट लिखा मिलेगा, लेकिन मैरिज के मुहूर्त में हमेशा दिस इज अकॉर्डिंग टू योर मून साइन। राइट सर, एक चीज और पढ़ी है कि मून साइन के साथ साथ जो लगन हो, जिस समय लामा फेरे होते हैं, उस लगन में पहले 7वें और 8वें घर में क्रूर ग्रह नहीं होने चाहिए। बिल्कुल। अगर किसी कुंडली में कोई कमजोरी भी है ना, ग्रहों की कमजोरी है, मान लो उसकी मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं दिखाई दे रही, अगर जो लगन जो जिस समय लामा फेरे होते हैं, अगर हम उसका चुनाव सही कर लें तो वो सारी कमजोरियां दूर हो जाती हैं। नरेश जी, हम लामा फेरे कब करते हैं यहाँ पर? हाँ जी, फेरे कब करते हैं? रात में, बिना मुहूर्त के। रात में रात तो सुबह हो जाती है, 3-4 बज जाते हैं। वो कोई शुभ समय नहीं होता। सनसेट टू सनराइज इज नॉट एन ऑस्पिशियस टाइम. We will not see with the English day start of the day.
We see night as the sunset to the sunrise. And sunset to sunrise is not auspicious for any type of thing. और हम मैरिज जैसा जो हम एक बहुत ही एक रिलीजियस काम कहेंगे, बहुत ही एक धर्म का काम है या बहुत ही एक पवित्र काम है, उसको हम रात में कर रहे हैं। आप मुझे दुनिया में किसी भी धर्म में बता दीजिए जहाँ शादी रात में होती हो। You take any religion anywhere in the world actually. जब डे टाइम में होती है सर। Everywhere in every religion, because कहते हैं कि शादी का जो बंधन है बहुत पवित्र बंधन है, इसको हम एक धार्मिक काम मानते हैं और कोई भी धर्म का काम रात में नहीं किया जाता। सर बंगाल में तो शादी तो रात में ही होता है। शादी का रस्म भी रात में ही होता है, मतलब जैसे 7 बजे 8 बजे लगन स्टार्ट होता है, उस टाइम होता है। हाँ, तो वहां भी गलत प्रैक्टिस है अगर वो कर रहे हैं तो, क्योंकि किसी भी ज्यादातर आप धर्मों में देखिए कि शादी हमेशा दिन में ही होती है। आप साउथ इंडिया में चले जाइए, मराठा देख लीजिए, मुसलमान देख लीजिए, क्रिश्चियन देख लीजिए, सिख देख लीजिए, कोई रात में नहीं करता। ये हम लोगों ने सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ये बना रखा है एक प्रैक्टिस कि रात में करते हैं। तो नरेश जी को मैं यही कह रहा था कि जो लामा फेरे की बात कर रहे हैं वो तो बेकार वैसे ही हो गया कि आपने रात में की। नहीं गुरुजी, ऐसा है कि जो लगन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मैरिज के लिए। नहीं, बट ये कहा कि रात में मैरिज होनी ही नहीं चाहिए, मैरिज करना ही गलत है। नहीं, वो तो गलत है, तो परंपरा तो हो ही रही है, रात को ही हो रही है ज्यादातर। गलत है ना वो अब परंपरा धीरे धीरे खत्म हो रही है। जब लोगों को बताया जा रहा है तो मोस्ट ऑफ द पीपल दे हैव स्टार्टेड डूइंग दिस लामा फेरे इन द डे टाइम। रात में सिर्फ पार्टी करते हैं अब जो भी। अब तो यहाँ भी नॉर्थ इंडिया में भी जो मैरिज हो रही है, काफी कुछ मैरिजेस अब दिन में ही होने लगी हैं। वो आजकल क्या होता है सर गुरुजी, जैसे मानो लगन निकला, मुहूर्त निकला रात को 11 बजे और 1 बजे के बीच का लामा फेरे का, लेकिन उस समय तो बारात पहुंचती है, जयमाला वगैरह होती है, वो सारा मुहूर्त निकल जाता है, मेन टाइम तो निकल ही जाता है। इसीलिए तो आजकल मैं कह रहा हूँ कि वो मुहूर्त ही गलत है, क्योंकि पंडित जी को तो वो कहा जाता है कि रात में ही निकालना है, तो वो रात में निकाल के आपको दे देते हैं, बट दैट इज बेसिकली रॉन्ग। तो किसी भी अब रिलीजन में देखते हैं कि हम सिर्फ ये, जैसे नॉर्थ इंडिया में हम लोगों ने एक प्रैक्टिस बना रखी है, दैट इज ओनली इन द नॉर्थ इंडिया, नोवेयर एल्स। अब जैसे इन्होंने कहा कि बंगाल में भी करते हैं, तो हो सकता है वहां भी कुछ गलत प्रैक्टिस हो, बट ज्यादातर जगह जो है, ज्यादातर धर्मों में जो है वो शादी दिन में ही होती है, रात में नहीं होती। क्योंकि शादी को हमने कहा कि बहुत एक स्पेशल दर्जा दिया, तो वेरी ऑस्पिशियस वर्क, कोई भी ऑस्पिशियस काम रात में नहीं होता। नेवर अलाउ एनी, नो मुहूर्त अलाउज ऑल दोस थिंग्स इन द नाइट एक्चुअली। सर तो फिर जैसे हम बोलते हैं सनराइज के बाद ही ऑस्पिशियस टाइम स्टार्ट होता है, तो फिर 4 से 5 का टाइम ऐसे जनरली लोग बोलते हैं इट्स अ ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त इज नॉट फॉर दिस पर्पस। ब्रह्म मुहूर्त में आप जो अपना काम उठ जाइए उसमें, और जो भी बाकी काम है वो करिए, ना कि शादी करिए उस टाइम जो है। अर्थ अच्छा माना जाता है ना सर। हाँ, उसमें जो एयर होती है बहुत अच्छी मानी जाती है, तो उसके लिए घूमने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए वो टाइम बहुत अच्छा है। इससे गेट अ फ्रेश एयर। कोई आपको ध्यान लगाना है उस समय, बिल्कुल साइलेंस होता है, कोई डिस्टरबेंस नहीं होता, तो इसलिए उसको अच्छा टाइम माना गया। पूजा पाठ करना है, एक्सरसाइज करना है, क्योंकि दिस इज टोटली टाइम फॉर पीस। बट उसमें ये नहीं कहा कि ब्रह्म मुहूर्त इज नॉट रिलेटेड टू कि आप शादी कर लो उसमें जो। अब जैसे गुरुजी जो अभिजीत मुहूर्त होता है, अभिजीत मुहूर्त के लिए कहते हैं कि इस मुहूर्त में कोई भी काम हम कर सकते हैं। अब जैसे सिखों में पहले दिन में 12 बजे के आसपास ही शादी होती थी, अभिजीत मुहूर्त कोई देखने की जरूरत ही नहीं है उनको, तो पहले इसीलिए होती थी, है ना। आजकल उस परंपरा को अब सिखों में भी नहीं उसको फॉलो कर रहे, तो उनके यहाँ भी अब 12 बजे बहुत अच्छी तरह से फॉलो करते हैं। सिख में कोई शादी रात में नहीं होती, सिख में शादी हमेशा 12 बजे के करीब ही होती है। सर वो तो हमेशा संडे को करते हैं शादी। संडे को देखिए कितने समझदार लोग हैं। आप ये सोचिए कि पहले तो संडे को करेंगे, और संडे मीन्स कि इट इज कन्वीनियंट टू एवरीवन। और हम लोग क्या करते हैं, बीच में करते हैं, वीकडे में जो है, तो लोगों को बट संडे को वो तीर्थवार सब वो उसके अकॉर्डिंग सही ना हो तो सुन तो लो पहले। तो हम लोग करते हैं कि वीकडे में करते हैं, जो भी आने वाला होगा उसको भी परेशानी होती है, वो भी उसको बहुत इनकन्वीनियंस होती है, 2 दिन 3 दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है। लेकिन सिख धर्म में कोई छुट्टी नहीं है। संडे के दिन आपने किया, संडे के दिन सन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, पहली चीज। एंड व्हाट इज अभिजीत मुहूर्त? अभिजीत मुहूर्त होता है दिन के करीब 11:30 12 बजे के बीच में।
दिन के 11:30-12 बजे के बीच में। तो लोग इसके 12 बजे सरदार नहीं, दे वेरी इंटेलिजेंट पीपल, कि उस टाइम सन इज मोस्ट पावरफुल। जैसा हम लोगों ने कहा था कि सन जो है नाइट में 0 स्ट्रेंथ होती है, और जब सन पूरा जब मिड डे होता है दैट सन हैज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ। तो सन की उस समय मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, संडे का दिन है। तो अगर सन आपके फेवर में हो गया, राजा आपके फेवर में हो गया, तो बाकी कोई क्या बिगाड़ेगा आपका? कोई बिगाड़ सकता है आपका? सन इज सपोज्ड टू बी द किंग ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। दैट इज रियली अ वेरी गुड टाइम। और आपने देखा भी होगा अभी जब ये राम मंदिर की जब शिलान्यास हो रहा था, जब पिछले साल जो है, बहुत कंट्रोवर्सी हुई कि गलत टाइम है, गलत टाइम है, इस टाइम क्यों कर रहे हैं, कोई ऑस्पिशियस टाइम नहीं है। आपने सुना होगा बहुत उस टाइम जो है। बट उनका आर्गुमेंट यही था कि अभिजीत मुहूर्त है, इट मींस सन इज मोस्ट पावरफुल एट दैट टाइम। तो उस टाइम आप कोई भी काम कर सकते हो। तो अभिजीत मुहूर्त तो कहा जो करीब आधा घंटा या 40 मिनट का समय होता है, उस टाइम आप कोई भी काम करिए। एंड पर्टिकुलरली ऑन संडे सन भी स्ट्रांग है और मैक्सिमम स्ट्रेंथ है जब अभिजीत मुहूर्त के टाइम उसकी जो है। तो क्योंकि सर अभिजीत मुहूर्त में जो सन होता है वो 10th हाउस में होता है हमेशा ज्यादातर। बिल्कुल। और 10th हाउस में उसको देखभाल पूरा मिलता ही मिलता है। अभिजीत मुहूर्त में सन हमेशा 10th हाउस में आ जाएगा। नहीं, दिग्बल से मतलब नहीं है, बट जैसे हम कहते हैं कि सन हैज मैक्सिमम, हाँ, सन हैज मैक्सिमम स्ट्रेंथ इन मिड डे टाइम एक्चुअली, एंड इट इज 0 स्ट्रेंथ इन द मिडनाइट। तो मिड डे पर सन की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, संडे का दिन है। तो और आपको क्या चाहिए? तो मैं तो कहता हूं कि इससे अच्छा तो कोई काम नहीं है, कि सबके लिए कन्वीनियंट है। और जब आप राजा को आपके फेवर में कर लिया, तो बाकी कोई आपका क्या बिगाड़ सकता है? तो फिर करण योग लगन कुछ भी नहीं देखेंगे हम, जरूरत ही नहीं उसको देखने की। तो फिर तो सारे काम ऐसे कर सकते हैं, अभिजीत हाँ, अगर पॉसिबल है तो करो, पॉसिबल है तो करिए। ऐसा इसीलिए तो ये कहा गया है ना कि अगर मान लो कोई मुहूर्त नहीं मिलता तो हम अभिजीत मुहूर्त में कोई भी काम कर सकते हैं। हाँ। अभिजीत मुहूर्त का क्या मतलब है? जब सन पावरफुल होता है, हर दिन अभिजीत आता है मुहूर्त 12-1 मतलब बजे के जो बीच में। मिड डे का टाइम होता है, व्हेन सन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, दैट इज अभिजीत मुहूर्त। और उस टाइम आप कोई भी काम करिए। अब देखिए राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था, तो किया नहीं किया उसको जो है, दैट वाज सच एन इम्पोर्टेंट वर्क फॉर द गवर्नमेंट। अब हॉरोस्कोप मैच करने की क्या जरूरत है? अगर लड़की का जुपिटर उच्च का है एंड इट इज वेल प्लेस्ड, तो आप आंख बंद करके शादी कर लीजिए। लड़के का सन अगर बहुत अच्छा है, वेल प्लेस्ड है, तो आप आंख बंद करके शादी कर लीजिए। फिर क्या जरूरत है बाकी चीजों को देखने की? बाकी चीजें तो इमैटेरियल हो जाती हैं। आप अगर किसी पुलिस कमिश्नर को जानते हैं, तो फिर आपका कोई क्या बिगाड़ेगा? तो दिस इज रियली ए वेरी इंटेलिजेंट वर्क एक्चुअली डन बाय देम। और जैसा मैंने कहा था कि वो जैसे गुरुद्वारे में जाते हैं हम लोग, जूते भी उतारते हैं, तो पहले जूते अपने आप वो माथे पे लगाते हैं, फिर आप आते हैं तो पॉलिश करके देते हैं आपको। आप किसी धर्म स्थान में देखते हैं ऐसा? और वो लोग कितने वेल टू डू लोग हैं, कितने रिच लोग होते हैं वो लोग, वो ऐसा काम करते हैं। तो जब ऐसा काम करेंगे तो आपकी ईगो तो बिल्कुल खत्म हो ही जाती है अपने आप ही जो है। और ईगो जब खत्म हो गई तो आपका कौन सा प्लैनेट क्या बिगाड़ेगा आपका? और जो हम बोलते हैं कि धार्मिक स्थान की सफाई करना, बहुत ज्यादा जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना है, सफाई सबसे ज्यादा सफाई पे ध्यान है। सफाई इतना वो नहीं है, सफाई में तो कोई ईगो आपकी खत्म नहीं हो रही ज्यादा। पर वो जुपिटर को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया ना सर। नहीं, जुपिटर तो स्ट्रॉन्ग हो गया, बट जो मेन जो प्लैनेट प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपको, शनि करता है। yes, तो शनि तो ईगो को आपको कंट्रोल करना है, अपनी ईगो को खत्म करना है। तो उससे अच्छा तो कोई काम नहीं हो सकता। जब आप किसी के जूते पॉलिश करके दे रहे हो, तो ईगो तो आपकी अपने आप मेल्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है बिल्कुल जो है। तो शनि बिकम्स अ वंडरफुल प्लैनेट फॉर दोज पीपल। और इसीलिए देखिए उनका स्टेटस बढ़ता चला जाता है उन लोगों का जो है। कभी वो शनि के लिए परेशान नहीं होंगे ऐसे लोग।
तो बहुत अच्छे काम है, बट हम लोग तो और किस धर्म में होता है, हम तो जाके पैसा देना पड़ता है जूते रखने के लिए आपको। तो कुछ प्लैनेट इस तरह से भी शांत हो जाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम इन कॉम्प्लिकेशंस में जाएं। तो हम जब एक चीज को समझ लें अच्छी तरह से, और जब समझ में आ गया तो उसके हिसाब से काम करिए। अब क्या हॉरोस्कोप मैचिंग, 95% लोग तो गुण मिलान पे शादी कर रहे हैं, विच इज टोटली ऑब्सोलीट, टोटली आउटडेटेड। उसको तो हमने मान लिया, और मैंने कहा कि जुपिटर या सन देख लो, जो रियली जो पे करेगा आपको, उसको नहीं मानेंगे, वो तो गुण मिलान पर ही जाएंगे, जो कि टोटली बेकार है आपके आज के टाइम में जो है। तो ये चीजें देखनी है। अगर इतनी जब ये समझ आ जाएगी तो फिर आपको इन चीजों की चिंता नहीं करनी बहुत ज्यादा, फिर आप और बहुत सारे एंगल से उसको ठीक कर सकते हैं। बट दिस इज व्हाट इज बीइंग डन, व्हाट इज बीइंग रिटन इन द पंचांग इज ऑल बेस्ड ऑन दिस। तो पता भी होना चाहिए क्या क्या लिखा हुआ है और क्यों लिखा हुआ है। तो यहाँ पर थे हम लोग कि 8th और 12th हाउस फ्रॉम द लग्न शुड नॉट हैव एनी प्लैनेट, कोई प्लैनेट नहीं होना चाहिए उसमें। फिर कहा कि मून इन द उपाच्य स्थान फ्रॉम लग्न इज ऑलवेज ऑस्पिशियस। अगर मून की पोजीशन 3, 6, 10, 11 है आपके लग्न से, तो भी जो है वो अच्छी पोजीशन मानी जाती है, मून स्ट्रांग हो जाता है। देन बेनिफिक प्लैनेट इन द केंद्र और त्रिकोण। बेनिफिक प्लैनेट शुड बी either in the Kendra or Trikon houses, and the malefic should be in the Trisdai houses. Trisdai is 3, 6, 11 houses. Then if Lagna has a sign which is 3, 6, 10, 11 from the birth sign, मतलब बर्थ साइन से उपाच्य स्थान में अगर लग्न है, बर्थ साइन मान लीजिए 1 है आपका, तो 3, 6, 10, 11 में अगर लग्न है तो दैट इज आल्सो सपोज्ड टू बी वेरी गुड लग्न एक्चुअली। The birth lagan sign. Birth sign means always moon sign. Okay. When we write birth sign, this is always moon sign. Otherwise, we say lagna. Okay. ठीक है. Then second thing is जो हम लोगों ने देखा था उसमें horary के अंदर कि one is the lagna and the second is the concerned house. Lagna and the concerned house. तो किसी भी मुहूर्त के लिए, किसी भी चीज के मुहूर्त के लिए लग्न और कंसर्न हाउस भी स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैरिज की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट हाउस और 7th हाउस उसमें स्ट्रांग होना चाहिए। हम प्रोफेशन की बात करेंगे तो फर्स्ट हाउस और 10th हाउस स्ट्रांग होना चाहिए। तो जो बेसिक रूल है कि लग्न एंड द कंसर्न हाउस, और जिस पर्पस के लिए हम मुहूर्त देख रहे हैं उससे कंसर्न हाउस कौन सा है, तो दैट हाउस शुड आल्सो बी स्ट्रांग। So these are basically the general rules for calculating the lagna for the muhurat. सर ऐसा भी होता है कि किसी दिन अभिजीत मुहूर्त कोई भी ना हो? नहीं, डेली दैट इज इन द मिड डे टाइम, 11:30, 12, 12:15 तक होता है वो, और उसमें कैलकुलेट करते हैं, बट नॉर्मली इट स्टार्ट्स फ्रॉम 11:30, 11:40 लाइक दिस। दैट इज बेसिकली मैं ऐप में देख रही थी, इसमें 19 मई को दिखा रहा है, कोई नहीं है अभिजीत मुहूर्त। गणमूल और भद्रा मे बी उस टाइम कुछ ऐसा होगा, जैसे कुछ जुपिटर कई बार राहु काल बीच में आ जाता है, तो हाँ, तो कुछ उस टाइप की चीज होगी। राहु काल बीच में आ जाए तो कहते हैं अभिजीत मुहूर्त की वैल्यू नहीं है, इसलिए वो शो ही नहीं करते हैं। अच्छा, हाँ, 12:15 से 2 बजे तक राहु काल था उस दिन, इसलिए मैडम उसे शो नहीं करते हैं वो लोग। तो कुछ उस टाइप की बात होगी, बट इट इज देयर एक्चुअली डेली। तो अंकल अगर इफ इन डाउट, अगर कभी डाउट हो और पंचांग नहीं मिल सके, तो देन अराउंड मिड डे इज अ गुड टाइम देन यूजुअली। बिल्कुल। हाँ, ठीक है। सरदारों में इसीलिए 12 बजे शादी करते हैं। इसीलिए अब कहते हैं कि 12 बज गया, मजाक बना लिया उसका, बट दैट इज रियली अ गुड टाइम। वी आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल एक्चुअली। बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं उसी चीज को। हम लोग इतने पढ़ने के बावजूद भी नहीं समझ पाए, लेकिन उन्होंने तो पहले समझ लिया। वो मुस्लिम्स पे अटैक भी उसी टाइम करते थे सर। और हम लोग तो रात में कर रहे हैं अभी भी शादी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पार्टी के लिए करते हैं हम अंकल, और क्या जी, पार्टी के लिए करते हैं, और क्या। पार्टी के लिए करो, बट तुम बाकी काम तो दिन में कर सकते हो ना। जो मुहूर्त, जो सेरेमनीज होती हैं शादी की, वो तो आप दिन में कर सकते हो।
सर अगर किसी के बर्थ चार्ट में सन मेलिफिक है या फिर डेबिलेटेड है तो भी ये टाइम उनके लिए सही है? अब बर्थ चार्ट की तो बात ही नहीं हो रही ना। अभिजीत मुहूर्त इज नॉट रिलेटेड टू ए बर्थ टाइम। ओके, दैट इज ए जनरल मुहूर्त, जनरल गुड टाइम। हम जितने भी मुहूर्त देखे एक दो को छोड़ के, तो हम अपना बर्थ चार्ट कहाँ कंसिडर करते हैं? सर डिवोर्स रेट इतने इसीलिए तो नहीं बढ़ गए कि हमारे टाइमिंग्स ही गलत है मैरिज के सबके? ऐसा नहीं कहेंगे, बिकॉज देयर अदर रीजंस फॉर दैट। सोसाइटी हैज चेंज्ड, बोथ आर इंडिपेंडेंट। अब कोई एक दूसरे को बर्दाश्त करने वाली बात खत्म हो गई है, तो नेचुरली जो डाइवोर्स रेट बढ़ जाएंगे अपने आप ही जो है। पहले मजबूरी थी कि डाइवोर्स पॉसिबल नहीं था या फीमेल के लिए कोई ऑप्शन नहीं था, बट अब ऑप्शन है तो नेचुरली वो उसका यूज करेगा खराब भी। फिर कुछ चीजें हैं, एक होलास्टक का नाम सुना होगा आपने। होलास्टक, होलास्टक क्या होता है कि होली से 8 दिन पहले, होली से 8 दिन पहले, तो ये फागुन शुक्ला को हम होली मनाते हैं। तो फागुन शुक्ला अष्टमी से फागुन शुक्ला पूर्णिमा तक का जो हम पूर्णिमा, फागुन पूर्णिमा को जो होली मनाते हैं, उससे 8 दिन पहले, मतलब फागुन शुक्ल अष्टमी से लेकर फागुन शुक्ल पूर्णिमा तक का समय, 8 days बिफोर द होली। तो कहते हैं कोई इसमें ऑस्पिशियस काम नहीं करना चाहिए। क्या रीजन है उसका? व्हाई दैट शुड बी बैड एक्चुअली? पहले होली 10 दिन पहले शुरू हो जाती थी और हुड़दंग मचता था 10 दिन पहले से, और सड़क पर मूवमेंट होना भी मुश्किल होता था उस टाइम जो है। और आजकल पोजीशन चेंज हो गई है, आजकल तो होली वाले दिन भी नहीं खेलता कोई होली। तो पहले टाइम के लिए एप्लीकेबल था, एंड दैट वाज बेस्ड ऑन द कन्वीनियंस, नॉट बेस्ड ऑन द मुहूर्त, कि हमेशा होली से 8 दिन पहले दिन खराब होंगे। क्यों खराब होंगे सर? एग्री सीजन को भी इसी का रीजन बताया, कल्टीवेशन होता है बहुत ज्यादा इस टाइम। हाँ, वो कल्टीवेशन तो होता ही है, बट वो तो पूरा महीना मार्च अप्रैल का हो गया। इसीलिए आप देखते हैं कि जब जैसे दिसंबर में शादी नहीं होती, वैसे ही मार्च अप्रैल में भी नहीं होती। तो यहाँ जो 8 दिन की बात की गई कि 8 दिन कोई भी शुभ काम करने के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो शोर मचता था बहुत। होली 10 दिन पहले शुरू हो जाती थी पहले, और काफी हुड़दंग मचता था। हम लोग देखते थे कि सड़क पर चलना मुश्किल होता था उस टाइम जो है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक वर्ड दे दिया होलास्टक, ये टाइम शुभ नहीं है। बट अब टाइम चेंज हो गया, अब तो ऐसा नहीं होता। तो अब करना चाहें तो कर सकते हैं उसमें जो है, लेकिन हम लोग उसको चेंज नहीं करते। वो चला आ रहा है कि होलास्टक है इसलिए अशुभ समय है। सर आपकी एक बात को मैं डबल कंफर्म करता हूँ। हमारे यहाँ पे होली से 8 दिन पहले अष्टानिका शुरू हो जाते हैं। अष्टानिका, उसमें आपने जैसा एक बात बताई पहले कि सबसे ज्यादा पूजा नेगेटिव दिनों में ही की जाती है, तो सबसे ज्यादा पूजा उन 8 दिनों में साल भर की जाती है। बिल्कुल। तो दो कोरिलेशन। अगर वो ऑस्पिशियस टाइम नहीं होता तो नहीं, वो ऑस्पिशियस टाइम आप जैसे आपने बताया, या ऑस्पिशियस टाइम नहीं, होली से 8 दिन पहले वाला, तो वो 8 दिन अष्टानिका बोलते हैं उनको। और सबसे ज्यादा पूजा उन्हीं 8 दिनों में की जाती है। अठाइयां भी बोलते हैं। नहीं, हाँ, वो भी अठाइयां भी आती है, मतलब साल में। अष्टानिका हम लोग क्या बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर जो मना किया गया कि कोई भी ऑस्पिशियस काम मत करिए उस पीरियड में, दैट वाज बेस्ड जस्ट ऑन द कन्वीनियंस पर्पस, कि लोगों को अगर आप करेंगे तो इनकन्वीनियंस आपको ही होगी और बाकी जो आएंगे उनको भी इनकन्वीनियंस होगी, क्योंकि होली के दौरान अगर आप करेंगे तो वो टाइम ठीक नहीं है। तो इसलिए इसको अशुभ समय कह दिया। एंड यू विल सी, जब हम लोग करेंगे पूरा, कि मोस्ट ऑफ द टाइम है बेस्ड ऑन दिस ओनली, इज बेस्ड ऑन द कन्वीनियंस पर्पस, कि कन्वीनियंस के हिसाब से ये मुहूर्त बनाए गए काफी हद तक जो है। ऐसे ही ये पुण्य काल है कि जब सन किसी भी नई राशि में एंटर करता है, तो हम कहते हैं कि जैसे हम हाउस वार्मिंग करते हैं, तो दिस इज ए कॉज ऑफ सेलिब्रेशन, कि हमें वो टाइम है और सेलिब्रेट। ऐसा नहीं कि इन दिस एंटरटेनमेंट फॉर्म, सन इज बेसिकली ए स्पिरिचुअल प्लैनेट, तो दिस इज सेलिब्रेशन शुड बी इन फॉर्म ऑफ पूजा पाठ। अब गुरु के पास जाइए, पूजा पाठ करिए, मंत्रों का जाप करिए, तो दैट टाइम इज गुड ओनली फॉर दैट पर्पस।
और उसमें भी अगर आप शादी वुदी कर देंगे बीच में तो आप माइंड डाइवर्ट हो जाएगा आपका, फिर आप पूजा पाठ कुछ नहीं कर पाएंगे और आपका माइंड जो है पूरा डाइवर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए कहा कि 6 घंटे 24 मिनट पहले, 16 घंटे पहले जब सन साइन चेंज कर रहा है और 16 घंटे बाद आफ्टर संक्रांति, तो इस पीरियड को कह दिया पुण्य काल है और इसमें कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये टाइम जो है और कुछ बाकी काम करने के लिए नहीं है, ये काम आपको पूजा पाठ करना है। ये 12 घंटे का जो समय है इसमें आपको पूजा पाठ करनी है। आप उन चीजों में आप इन्वॉल्व होइए, ना कि ये और दूसरे कामों में जो है। तो इसलिए इसको भी जो है वो मना कर दिया। होलाष्टक है, पुण्य काल है, इसका कोई रीजन नहीं है। पुण्य काल तो ठीक है बिकॉज इट्स मेंट फॉर डूइंग ऑल दोस थिंग्स, नॉट अदर टाइप ऑफ थिंग्स एक्चुअली। बट ये अशुभ होने का कोई मतलब ही नहीं है। बट ओनली थिंग इज कि इनकन्वीनियंस की वजह से इसको हमने इनऑस्पिशियस माना। Then we come to the hora. होरा हम लोगों ने देखा कि होरा मीन्स 1 आवर और एक दिन में 24 होरास होते हैं। और हमारा जो डे है वो सनराइज से शुरू होता है। तो सनराइज के टाइम, सनराइज से शुरू करके जो पहला होरा होता है वो उसी जो वीक डे का लॉर्ड होता है उसका होता है। जैसे मान लीजिए कि आज संडे है और आज सनराइज मान लीजिए 6 बजे हुआ, तो 6 से 7 बजे तक का जो टाइम है दैट इज द होरा ऑफ सन, दैट इज द होरा ऑफ सन। और उसके बाद जो होरा का सीक्वेंस है, थर्ड फ्रॉम द बैक, थर्ड फ्रॉम बिहाइंड। जैसे कि सन है तो सन से अगर आप तीसरा बैक साइड से काउंट करेंगे तो संडे, सैटरडे, फ्राइडे, तो सेकंड होरा विल बी ऑफ फ्राइडे, दैट इज वीनस। फिर नेक्स्ट होरा अगर आप फिर थर्ड काउंट करिए फ्राइडे से तो फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, तो नेक्स्ट होरा विल बी ऑफ मरकरी। फिर नेक्स्ट होरा विल बी ऑफ मून। तो इस तरह से होरा का सीक्वेंस होता है, आइदर 6th फ्रॉम द फ्रंट और 3rd फ्रॉम द बैक एक्चुअली। तो आपको पता लग जाता है कि कौन से टाइम में कौन सा होरा चल रहा है, कौन से प्लैनेट का होरा है। और होरा भी इसीलिए बनाए गए कि कभी कभी इमरजेंसी में आपको कुछ काम करने पड़ते हैं और अगर आपको कोई मुहूर्त नहीं मिल रहा या टाइम ऐसा नहीं है तो यू कैन डू ए पर्टिकुलर वर्क इन ए पर्टिकुलर होरा आल्सो, डिपेंडिंग ऑन द प्लैनेट एंड व्हाट टाइप ऑफ वर्क यू कैन डू इन ए पर्टिकुलर होरा आल्सो। तो उसमें यही बताया गया कि अगर सन का होरा है तो ओथ सेरेमनी जैसे गवर्नमेंट में करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, ज्वाइनिंग न्यू सर्विस है, एनी गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क है, यज्ञ है, मंत्र है, सेल ऑफ व्हीकल है, वो काम आप कर सकते हो। मून का हो रहा है तो कोई एग्रीकल्चर है, वेयरिंग ऑफ न्यू क्लोथ, जेम ज्वेलरी, क्रिएटिव वर्क, मैन्युफैक्चरिंग और बाइंग ऑफ सिल्वर वेयर्स, वो काम आप कर सकते हैं। मंगल का हो रहा है डिबेट है, आर्गुमेंट है, लैंडिंग मनी है, माइनिंग है, मेटल वर्क, गोल्ड स्मिथ, सर्जरी, एक्सरसाइजेस। तो इसी तरह से डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्लैनेट यू कैन डू ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क इन ए पर्टिकुलर होरा ऑफ ए प्लैनेट। तो ये होरा का कंसेप्ट है कि अगर आपको कोई मुहूर्त नहीं मिल रहा, और कभी कभी होता भी है कि हमें बहुत जल्दी में काम करना पड़ता है, एकदम डिसीजन लेना पड़ता है कि वो कहता है अभी आ जाओ, अभी ज्वाइन कर लो, या ये काम हमें अभी करना है, टाइम नहीं है, तो आप सुटेबल होरा देखकर उस काम को आप कर सकते हैं। तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। वी ऑफ कोर्स वी हैव टू see a lot of other things also while selecting muhurat. Uncle, I have a general question. Can I ask? हाँ, पूछिए। Uncle, ये जो दशास के बारे में पूछना था, and you know you know when we think about the combination being 2, 12 or 6, 8, इसके बारे में पूछना था अंकल कि जब अगर you know अगर आप कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर करा दें 2, 12 and 6, 8 का, and whether we look at it in the Lagna chart or also in the Navama in D9 and D10. देखिए, हाँ, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, कि जब भी हम किसी भी दशा के रिजल्ट देखते हैं तो हमने कहा कि रिजल्ट होते हैं या तो दशा के होते हैं, मेन पीरियड के होते हैं, या सब पीरियड के होते हैं, और इनमें से जो भी स्ट्रांग होगा उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे।
But sometimes we have to see the relation between dasha and antardasha lord. That is the position of these two planets in the particular लग्न chart. लग्न चार्ट में हमें देखना है. तो अगर लग्न चार्ट में ये दो प्लैनेट, मेन पीरियड एंड द सब पीरियड लॉर्ड, they are either in a 6-8 position or in a 2-12 position in the lagna chart, so then that position is not supposed to be good. The result of that dasha may not be good, because 6-8 means ki it may create some health problem, and 2-12 means ki something connected with the finance, negative from adverse from the finance point of view. Sorry uncle, आपकी somebody needs to go mute actually. So नरेश जी, हेल्थ को मैं दिखाता हूँ. हाँ जी. जैसे यहाँ पर दशा जो ऑपरेट हो रही है, लेट अस से कौन सी दशा हो रही है? सन जुपिटर की. सन जुपिटर, करेक्ट. सन में जुपिटर का पीरियड अभी चल रहा है. तो इनकी आपस में क्या पोजीशन है? सन यहाँ पर है और जुपिटर कहाँ पर है? पर ये तो D10 हो गया ना अंकल? ये लग्न नहीं है. उसको लग्न मान लीजिए, इसको लेट अस से लग्न चार्ट है. ओके ओके. सन यहाँ पर है, जुपिटर यहाँ पर है. तो आपस में क्या पोजीशन होगी इसकी? 6-8 पोजीशन होगी. यहाँ से काउंट करेंगे 6 आएगा, यहाँ से करेंगे तो 8 का आएगा. करेक्ट. तो अगर ये लग्न चार्ट होता और अगर सन जुपिटर की दशा ऑपरेट होती तो हम कहेंगे कि जो मेन एंड द सब पीरियड लॉर्ड है वो आपस में 6-8 पोजीशन में है, which is not supposed to be a good dasha in spite of the individual planet being good actually. So 6-8 will cause health issues, is it uncle? Health issues, and 2-12 is adverse from the finance point of view. I see. अच्छा, and uncle, हाँ जी, go ahead. कि क्या हम इसको उसमें भी देखते हैं डिविजनल चार्ट में? क्या हम इसको डिविजनल चार्ट में भी देखते हैं? तो हमने इसको लग्न चार्ट बनाया, मान लीजिए ये लग्न चार्ट है इसका. तो यहाँ सन जुपिटर की पोजीशन क्या है? 2-12 है. तो वैसे भी खराब ही है ये. मान लीजिए कुछ और होता, 2-12 की जगह यहाँ तो सारे ऐसे हैं. लेट अस से मून एंड सैटर्न का दशा है, या कोई भी मरकरी सैटर्न की दशा है, तो ना तो ये 2-12 है ना 6-8 पोजीशन है. Normally we expect good result from this dasha. Yes. But अगर यही दो प्लैनेट, मान लीजिए आप प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दसवां चार्ट में यही प्लैनेट अगर 6-8 या 2-12 पोजीशन में है D10 चार्ट में, तो then they will not give you the expected result as expected from this chart. ओके. सो दोनों चार्ट में देखना पड़ेगा फिर. दोनों में मैटर करेगा. बट क्वेश्चन इज की फॉर व्हाट पर्पस यू वांट टू सी. इफ यू वांट टू सी फ्रॉम प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू, देन यू हैव टू सी D10 चार्ट. इफ यू वांट टू सी फ्रॉम मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू, यू हैव टू सी D9 चार्ट. सर अगर डिविजनल चार्ट में 8th हाउस के प्लैनेट की दशा या अंतर्दशा है तो वो उस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के डेथ लाइक इफेक्ट्स देगा, मतलब वो ओके खराब होगा. राइट. और सर अगर लग्न चार्ट में 6-8 में है दशा और अंतर्दशा के लॉर्ड, तो वो चाहे किसी भी हाउस में प्लेस्ड हो, वो हेल्थ के लिए ही खराब होंगे ज्यादा. आपस में अगर 6-8 पोजीशन है तो राइट. दैट पीरियड चाहे किसी भी हाउस में फॉर्म हो रही हो, कहीं भी हो, बट दैट पीरियड विल बी एडवर्स फ्रॉम द हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू. तो जैसे इस करंट केस में ये लगन चार्ट में तो 2-12 पोजीशन है और D10 में 6-8 है, तो इसका क्या हम मतलब ओवरऑल खराब हो गया? वो तो यहीं से खराब हो गया ना. जब यहीं से खराब है तो D10 इससे तो हो गया फाइनेंशियल लॉस हो सकता है. और D10 से हेल्थ कैसे, मतलब वो तो हेल्थ D10 से हेल्थ नहीं है. आई एम नॉट सेइंग कि यू स्टार्ट सीइंग हेल्थ फ्रॉम D10 चार्ट. What I'm saying is if the planet is in 6-8 position in the D10, that will not be good from profession point of view. Now health is here only, not in D10 chart. Okay. हेलो गुरुजी, जैसे आज आपने मुहूर्त के बारे में बताया, अनुमति दे तो एक चीज रह गई शायद. अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, अभी तो खत्म थोड़ी हुआ है. हाँ जी, मेरे को थोड़ा ध्यान आया तो इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ. जैसे दिक्ता तिथि पे भी बहुत विचार करते हैं कि रिक्ता तिथि नहीं होनी चाहिए. नहीं, वो हम लोग कर चुके हैं पिछली क्लास में. अच्छा. ये जो तिथियों को नंदा जया भद्रा रिक्ता पूर्णा, वो हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी. अच्छा ठीक है. आप नहीं थे पिछली क्लास में, बट वो हम लोग कर चुके हैं उसमें. अच्छा.
सर 6-8 और बाकी रिलेशनशिप ये तो हम वर्ष कुंडली में भी देखेंगे ना? एवरीवेयर, वो तो नॉर्मल एक रूल है एस्ट्रोलॉजी का। सर एक जनरल क्वेश्चन एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड और है सर, हम नक्षत्र कैसे यूज करते हैं प्रेडिक्शंस के लिए? क्या चीज? नक्षत्र जो यूज करते हैं सर। हाँ, नक्षत्र जैसे हम देखते हैं कि वो प्लैनेट किस नक्षत्र में है। जैसे हम डिस्पोजिटर की पोजीशन देखते हैं ना, हाँ जी सर। हम कहेंगे कि ये मार्स जो है ये 7th साइन में है, तो इसका डिस्पोजिटर क्या हुआ? वीनस। तो वीनस की पोजीशन हम देखते हैं, देन वी हैव एन आइडिया अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ दिस प्लैनेट। तो हम नक्षत्र में क्या कहते हैं कि नक्षत्र किस नक्षत्र में है। जैसे यहाँ पर देखिए कि मंगल किस नक्षत्र में है? श्रवण है? शतविष्ठा में राहु का है जो। शतविष्ठा ये राहु के नक्षत्र में है। मंगल इज इन द नक्षत्र ऑफ राहु। So then we have to see the position of the dispositor of the lord of this nakshatra. तो राहु की पोजीशन हमें देखनी पड़ेगी, and that will have a important or the you can say the main effect on this position of Mars. Okay. So sir जैसे for right sir आप complete कीजिए। हाँ जी। सर जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये स्पाउस के हाउस में मार्स राहु के नक्षत्र में है, तो स्पाउस की कैरेक्टरिस्टिक्स में भी राहु का इन्फ्लुएंस आएगा फिर, मतलब उसे इंटरप्रेट कैसे करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल वही मतलब हुआ कि राहु के नक्षत्र में है तो ये पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। राइट, क्योंकि 2 मेलेफिक्स हो गए। करेक्ट, ठीक है। और सर जो उस नक्षत्र के अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी रिफ्लेक्ट वो तो है ही, वो तो नॉर्मली वी सी दैट ईच नक्षत्र हैज अ कैरेक्टरिस्टिक एंड नॉट ओनली नक्षत्र, इवन ईच पद हैज अ कैरेक्टरिस्टिक। राइट। तो वो स्पाउस के नेचर में वो भी रिफ्लेक्ट होंगे। बिल्कुल। ओके सर। तो सर अगर कोई प्लैनेट अपने ही नक्षत्र में है तो उसकी पावर बढ़ जाएगी? बिल्कुल, इट बिकम्स पावरफुल। इसीलिए कहते हैं कि मगर और मैनी हॉरोस्कोप यू फाइंड दैट मैनी प्लैनेट्स आर प्लेस्ड इन देयर ओन नक्षत्र, so they become very powerful. और सर लग्न का नक्षत्र भी मैटर करेगा? हाँ, क्यों नहीं, हर चीज का करेगा। सबसे ज्यादा करेगा वो तो। और क्या, सबसे ज्यादा करेगा। बिल्कुल। तो जो यहाँ पर षटबल निकाले होते हैं, कैलकुलेट किए होते हैं, सो दे मस्ट हैव कंसीडर्ड नक्षत्र पोजीशन आल्सो। नहीं, नक्षत्र पोजीशन कहाँ, आपने तो षटबल कैलकुलेशन देखा है ना पूरा, उसमें नक्षत्र का नहीं कंसीडर। नहीं सर जैसे नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा होता है, मान लो शुक्र की दशा है, तो शुक्र जिन हाउसेस का स्वामी है वहां के फल मिलेंगे। लेकिन वो जिस नक्षत्र में बैठा है सर, वो नक्षत्र का स्वामी जिन हाउसेस का लॉर्ड है, उन हाउसों के फल भी मिलेंगे साथ साथ। बिल्कुल, क्योंकि वो नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो भी मैटर, काफी उसका रोल होगा उस प्लैनेट के उसमें रिजल्ट में जो है। मान लो मंगल बृहस्पति के नक्षत्र में है तो मंगल के भी फल मिलेंगे 2 राशियों के, और बृहस्पति की जो 2 राशियां हैं जहां भी आएंगी उनके भी फल मिलेंगे ना सर? बिल्कुल। और सर जो कारक है, जैसे मून अगर मदर का कारक है, तो मून जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र का इन्फ्लुएंस मदर पे भी होगा। हाँ बिल्कुल, और क्या, मून किस नक्षत्र में है वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट इज योर बर्थ नक्षत्र आल्सो। राइट सर। Any other question? सर जैसे कोई किसी पर्टिकुलर चीज के लिए मुहूर्त पूछता है और दैट पर्सन इज इन डिफरेंट सिटी और मे बी इन डिफरेंट कंट्री, तो सर हमें वहां का फिर पंचांग देखना पड़ेगा। मे बी फॉर एग्जांपल यूएस, तो यूएस का पंचांग हमें कैसे मिलेगा फिर? सब जगह का होता है, इंटरनेट पे सब चीजें अवेलेबल हैं, और इसमें भी अगर आप जो इंडियन पंचांग भी है उसमें भी करेक्शंस आपको मिल जाएंगे, करेक्शन अप्लाई करके वो भी देख सकते हैं, बट इट्स अवेलेबल फॉर एवरी कंट्री एंड एवरी सिटी आल्सो। एक्चुअली वो जो पंचांग में सिटी का आप चॉइस कर सकते हैं ऑनलाइन, सो आई लुक एट इट फॉर सिंगापुर, सो यू कैन सिलेक्ट द सिटी। करेक्ट। But we have to see the local panchang because that sunrise time, sunset time, tithi, muhurat, nakshatra, they all will be different actually. सर जैसे आजकल बहुत लोग डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं, मान लो वो इंडिया के लोग हैं बट फॉर एग्जांपल इटली में जाके वो शादी कर रहे हैं, तो हम इटली के अकॉर्डिंग मुहूर्त निकालेंगे? बिल्कुल, नेचुरली, और क्या। ओके। आपको ऐसे क्लाइंट्स मिल रहे हैं? नहीं, आई एम जस्ट अज्यूमिंग। शी इज ऑलरेडी मैरिड एक्चुअली, तो
डेस्टिनेशन मैरिज हमने जस्ट इमेजिनेशन चल रही है सारी। तो हम उसी जगह का टाइम देखेंगे जहाँ पर वेडिंग होगी। हाँ। और सब जगह, इवन जब यूएसए वगैरह में जाते हैं, भावना को तो पता है, वहां भी पंडित वही होते हैं, वहां भी उनके पास सब कुछ होता है सामान, वही पूजा भी ऐसे ही करते हैं, मुहूर्त भी ऐसे ही करते हैं जैसे यहाँ करते हैं। तो जैसे कई लोग मूवीज वगैरह में दिखाते हैं कि जैसे कोई ट्यूसडे को फास्ट रखता है तो बोलते हैं आज इंडिया में ट्यूसडे है तो हम आज फास्ट रखेंगे, जबकि वहां पे मंडे या वेंसडे हो सकता है। नहीं, वहां पर जहाँ रह रहे हैं उसके हिसाब से करना चाहिए ना आपको। वहां जैसे तो नहीं कई मान लो घूमने गए हैं फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, ऐसे गए हैं 1 वीक के लिए गए हैं, वेकेशन पे गए हैं, तो आई हैव सीन पीपल डू लाइक दिस कि आज मेरा फास्ट है बिकॉज आज इंडिया में ट्यूसडे है। तो आई थिंक उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। फास्ट इज नॉट सच ए इम्पोर्टेंट थिंग एक्चुअली कि उससे कुछ फर्क पड़ेगा, बट अगर कोई ऑस्पिशियस काम है तो वहीं के हिसाब से करना चाहिए। ये करवा चौथ वगैरह के लिए इम्पोर्टेंट होगा। करवा चौथ ठीक है। आई थिंक विल कंटिन्यू विद दिस। अभी मुहूर्त मे बी वन मोर सेशन में बी रिक्वायर्ड एक्चुअली, देन वी विल सी, बिकॉज़ मेनी थिंग्स आर स्टिल नॉट डन। Thank okay you, then, sir. thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, sir. प्रणाम, sir. Good night. प्रणाम, प्रणाम, good night. प्रणाम गुरुजी, प्रणाम आपको। प्रणाम, प्रणाम।